Now, dual nature of matter and radiation, the part 5, fifth part of this video. In this video, we are going to discuss the Einstein's photoelectric equation. Now, photoelectric effect, you know, that's a very simple. That if a light of suitable wavelength, a suitable frequency means that frequency should be greater than the threshold frequency. That you know. So if the light of suitable frequency incident on the metal surface, then photoelectrons comes out. That we know. Photoelectric effect. So what happens? Albert Einstein, the greatest scientist, has given or formed a particular equation, simple equation, and on this particular photoelectric effect, he got the Nobel Prize for photoelectric effect in 1931. What is that particular photoelectric equation? That is very important. So, according to the concept given by the Albert Einstein, that whatever the energy of a photon, that is one photon, h nu. When energy of photon is divided into two parts, when the energy is divided or energy is distributed into two parts, when a particular energy light of photon incident on the metal surface, then this energy of the one photon means each photon divided into two parts. What are the two parts? Number one, first part is used up to overcome the surface barrier or work function of that metal, that denoted by phi naught of that metal. First part is used up in this. Second part of that energy of the photon is used up or consumed to impart speed to the photoelectrons. When the second part is to impart the speed means kinetic energy. That imparted speed means kinetic energy. Kinetic energy means half mv square. Then so the total energy of the photon, one photon we are talking about, when it is going to hit onto the metal surface, then what happens? The total energy is divided into or distributed rather in two parts. Number one, to overcome the surface barrier or work function. Number one. Number two, to impart the speed or the kinetic energy to the photoelectrons. अगर मान लेते हैं ये वाला पार्ट नहीं होता तो क्या होगा? Just it becomes free, but photoelectron will not move. So the total energy is divided into these two parts. Total energy of the photon. So the same thing if we are going to write in the equation form, जब ये पूरा टोटल चीज हम लोग अगर एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो h nu, ये टोटल एनर्जी क्या था? किसका था? फोटोन का था. That is equal to the surface barrier is work function h nu naught. That is your work function to overcome it plus kinetic energy imparted onto the photoelectrons, and that is h nu is equal to h nu naught plus half mv square. That speed is it. So kinetic energy half mv square. So we can write half mv square is equal to h within bracket nu minus nu naught. That is the
Einstein's photoelectric equation. Half mv square, the maximum kinetic energy is equal to h nu minus u naught. यही था उनका kinetic photoelectric equation, Einstein. So that is a very important equation. एक चीज यहाँ पर देखिए nu minus u naught, अगर मान लेते हैं ये जो nu क्या है, जो इंसिडेंट एनर्जी आ रही है वो अगर वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी देन ओनली, तो हियर nu इज ऑलवेज ग्रेटर देन nu नॉट. अगर मान लेते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर ऐसा होता है if nu नॉट इज ग्रेटर देन nu मींस इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होता अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता. सो नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. हाफ mv स्क्वायर एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट. न्यू क्या है, जो इंसिडेंट लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी. न्यू नॉट क्या है, इस मेटल का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो. ठीक है, दैट इज द इक्वेशन. Another important mathematical concept is there related to that photoelectric effect is that हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं किस टॉपिक में, प्रीवियस वीडियो में, इफेक्ट्स ऑफ इंटेंसिटी, पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी on photoelectric current या फोटो करंट. इसी टॉपिक के दौरान एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल that is V naught is directly proportional to the frequency, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. ये टॉपिक आया था V naught is directly proportional to the frequency of the incident photon or incident light. अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहां पर एक काम करते हैं, if we are going to plot a graph, very important graph प्लॉट कर रहे हैं. इधर x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल y एक्सिस में. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस. तो एक पर्टिकुलर मेटल का यूज करके हम पहले ये बढ़ा रहे हैं, क्या पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे जब तक कि ओवरकम नहीं हुआ वर्क फंक्शन तब तक वो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है. तो थर्मो इलेक्ट्रॉन निकलना तब शुरू होगा जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो यहां से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. तो इसका ग्राफ मेरा आ जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन बट नॉट फ्रॉम द ओरिजिन. इस तरह का ग्राफ मिलेगा. और ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर, ये यहां से यहां, दैट इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मेटल. ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मेटल, जिस मेटल पर इंसिडेंट हो रहा है कौन, फोटॉन्स. अब इसको यहां पर इसको पीछे की ओर बढ़ा रहा है, तो यहां पर ये कट कर रहा है. मान लेते हैं, नाम दे दिए O A, ये पॉइंट है B, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन बन गया. ठीक है, अब यहां पर हम लोग आते हैं उस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, आइंस्टाइन का इक्वेशन. आइंस्टाइन इक्वेशन क्या था, हाफ mv max means maximum kinetic energy is equal to h nu minus u naught. इतना आया, इतना था. और ये जो इक्वेशन है, हाफ mv max maximum kinetic energy is equal to h nu minus h nu naught. इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. अब हम लोग जानते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है, ये भी हम लोग जानते हैं, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल.
और याद रखा पहले वाला वीडियो दैट इज E into V naught is equal to H nu minus H mu naught. Very important question. हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है मींस चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज योर एनर्जी दैट इज गोइंग टू रिप्लेस इज इक्वल टू V naught. हम क्या करते हैं E को इस तरह कर देते हैं E by H by E nu minus H by E nu naught. इतना अब हम लोग यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि यहां पर V नॉट इज इक्वल टू इतना आया और इसको हम लोग एक चीज हुआ H by E न्यू माइनस इसको हम लोग फाई नॉट से नोट कर सकते हैं वर्क फंक्शन H न्यू नॉट वर्क फंक्शन. फाई नॉट क्या है? वर्क फंक्शन. अब यहां पर ये एक जो इक्वेशन आया है इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा फर्दर और ये करते हैं. इक्वेशन आया उस इक्वेशन को हम यहां लिखते हैं V नॉट इज इक्वल टू H by E into न्यू माइनस फाई नॉट by E. अब ये इक्वेशन को अब देखने सही से आप देखो सी दिस इक्वेशन इट लुक्स लाइक a स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमको समझ में आता है. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे मैथ्स में पढ़े होंगे. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस c प्लस और माइनस c वेयर m इज द स्लोप c इज द y इंटरसेप्ट. अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो प्लस, नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो नेगेटिव तो माइनस. m क्या है? स्लोप. अब अगर हम लोग ये केवल यहां पर नेगेटिव लेते हैं तो m x माइनस c, तो ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन बहुत सिमिलर इक्वेशन हमको नजर आ रहा है. v नॉट इज इक्वल टू दिस इन न्यू माइनस दिस. तो सिमिलर इक्वेशन. तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहां से मेरा m की जगह में हम लोग यहां पर h by e लिख सकते हैं. m क्या है? स्लोप मींस tan थीटा ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ. और अगर हम लोग y इंटरसेप्ट को देख रहे हैं तो c इज इक्वल टू फाई नॉट बाई e. c क्या है? y इंटरसेप्ट. अब ये चीज हमको मिला है. अब हम लोग उस ग्राफ पर जाएंगे और उस ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे यहां पर h का वैल्यू और यहां पर फाई नॉट वर्क फंक्शन का वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्राफ. अब देखिए यहां पर इधर अब हम पहले क्या करते हैं, ये ग्राफ है मेरा तो v नॉट और म्यू के बीच ग्राफ है. अब हम पहले क्या करते हैं, इस ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन है नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं. स्लोप निकालने के लिए मान लेते हैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए y एक्सिस पर या इस तरफ और एक ट्रायंगल बना दिया. यहां पर एक ट्रायंगल बन गया. ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर y एक्सिस पर है और ये x एक्सिस पर परपेंडिकुलर. तो ये एक ट्रायंगल बन गया. इस ट्रायंगल का नाम दे दिए, मान लेते हैं DEF. ये जो ट्रायंगल बना राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो एंगल ये वाला एंगल होगा, इसका जो स्लोप है दैट इज योर स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ. तो स्लोप हम निकालने के लिए स्लोप को m से डिनोट करते हैं मैथमेटिकली. स्लोप होता क्या है? दैट इज योर tan थीटा. tan थीटा मींस p by p. इस राइट एंगल ट्रायंगल में p by p. तो p कौन सा हो गया? EF और b कौन सा हो गया? DE. तो ये क्या है? EF की जगह हम लोग एक नेट या छोटा वैल्यू है क्या चीज का? स्टॉपिंग पोटेंशियल. छोटा वैल्यू यहां पोटेंशियल का वैल्यू. और ये जो वैल्यू है यहां से यहां ये एक पर्टिकुलर डेल न्यू छोटा फ्रीक्वेंसी. तो हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाय दिस मींस v नॉट बाय डेल न्यू लिख सकते हैं आप. v नॉट बाय डेल न्यू. यहां से हम लोग स्लोप निकाल देंगे इजीली. ग्राफ मेरे पास है, हम स्लोप निकाल देंगे. स्लोप हम दिस बाय दिस कर दें, स्लोप निकल गया.
तो h का वैल्यू स्लोप हमको मालूम हो गया, स्लोप हमको मालूम हो गया, स्लोप को अगर e से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट इज योर h प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने का वैल्यू। ये स्लोप को अगर e क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको स्लोप निकालने के बाद जितना इसका वैल्यू है उसको e से मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू आएगा। h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 × 10⁻34 जूल सेकंड। तो h का वैल्यू निकल जाएगा, एक प्रूफ कर दिया। दूसरा कांसेप्ट यहां पर क्या है, अब ये वाले आएंगे c y इंटरसेप्ट। अब देखिए y इंटरसेप्ट जो है यहां पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये ग्राफ का ये इंटरसेप्ट कर रहा है y को इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन निगेटिव y पे कर रहा है। तो ये पर्टिकुलर बोलेंगे निगेटिव y इंटरसेप्ट, इसी को c से डिनोट करते हैं मैथमेटिक्स। तो इस ग्राफ से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना है उस ये पर्टिकुलर वैल्यू निकाल दिए। तो यहां पर हम लोग वर्क फंक्शन यहां पर इस इक्वेशन से वर्क फंक्शन इज इक्वल टू जो इंटरसेप्ट है इसको e से मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटरसेप्ट यहां पर इस ग्राफ में क्या है, OA into E, दैट इज वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन इसका उस मेटल पर जिस मेटल पर वो लाइट इंसिडेंट हो रही है उस मेटल का हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं। ये क्या है, इंटरसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई कर दिए तो यू विल गेट द वर्क फंक्शन। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट concept. Usually in your board exam this question is being asked. Okay, thank you.